بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب، خوش آمدید۔ آپ سب کا ان لائٹ اکیڈمی کی دنیا میں خیر مقدم ہے۔ آج ہم پھر سیکھنے اور سکھانے کے عمل کے لیے روبرو ہوئے ہیں۔ آج ایسے مواد کا مطالعہ کریں گے جو ریاضی کی ہر شاخ میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ حقیقت میں تعلیم کس طریقے کی ہونی چاہیے؟ حقیقت میں آج کل نئی اور پرانی تعلیم کا فرق اس طرح ہونا چاہیے کہ نہ تو تعلیم فیثاغورس سے شروع ہو اور نہ ہی آئنسٹائن پر ختم ہو، لیکن سب سے پرانی اور جدید ہو۔ ان دونوں کا مد نظر رکھ کے تعلیم ہو، لیکن جہاں شروع وہاں ختم، اس طریقے کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لائٹ اکیڈمی اور ہر بار جس چیز پر ہم بحث کرتے ہیں کہ ہم واٹ، وائی اور ہاؤ، کیا، کیوں، کیسے ہم چیزوں کو سمجھیں گے۔ آج ہم متناسبت کا بنیادی مسئلہ جانیں گے، بیسک پروپورشنالٹی آف تھیورم۔ اسے ہم صرف ایک جماعت، ایک اسٹینڈرڈ کے لیے نہیں سمجھا رہے ہیں یا ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسے ایک ایسی بیسک، ایک ایسی بنیاد بنانا چاہتے ہیں جس سے آپ اگلے تمام مرحلوں کو، آنے والی اپنی زندگی میں چیزوں کو سمجھ سکیں اور اس کا استعمال کر سکیں۔ متناسبت کا بنیادی مسئلہ، اس سے پہلے ہم اس کے تاریخ کے بارے میں کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم آج کیا میں ہم دیکھیں گے علم ہندسہ، جسے ہم جیومیٹری بھی کہتے ہیں۔ علم ہندسہ ریاضی کی ایک شاخ ہے جو مختلف ہندسی شکلوں کی خصوصیت کے موضوع یا مسئلوں کے ذریعے بغیر کسی ٹھیک پیمائش کے سمجھاتی ہے۔ ایسے نظریاتی یا مسئلیاتی علم ہندسہ کہتے ہیں، جیسے ہم جیومیٹری کہتے ہیں۔ ہم مختلف شکلیں بناتے ہیں جو کوئی ایکوریٹ اور صحیح پیمائش پر نہیں ہوتی، لیکن ہم ان شکلوں کے ذریعے بڑی سے بڑی چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اس کو جیومیٹری میں کہتے ہیں۔ Geometry is a branch of mathematics that deal with the properties of various geometrical figures. The geometry which treats the properties and characteristics of various geometrical shapes with enzyme or theorem without the help of accurate measurement is known as theoretical geometry۔ اس کے علاوہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں کہ ہم کو اس سے کیا زندگی میں اور ہماری لائف میں استعمالات ہیں، جسے ہم اطلاق کہتے ہیں۔ متناسبت کا بنیادی مسئلہ کہ اطلاق میں مزید معلومات حاصل کرنا۔ اس کے استعمالات بہت ہی جگہ پر ہوتے ہیں، جیسے ہم آگے جا کے دیکھیں گے، اس کے تھیورم کو سمجھیں گے۔ اس کا حصہ کوئی بھی دو سے زیادہ پیرالل لائنز، 3 پیرالل لائنز، 2 پیرالل لائن، ان پیرالل لائنز کے ذریعے، متوازی خطوط کے ذریعے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ہم اس کو سمجھیں۔ اسے ایجاد کس نے کیا؟ اسے تھیلیس کا تھیورم بھی یا تھیلیس کا مسئلہ بھی کہتے ہیں۔ یہ تھیلیس ہے جو ایک یونانی فلسفی ہے۔ متناسبت کا بنیادی مسئلے کو مشہور یونانی ریاضی داں تھیلیس سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس مسئلے کو تھیلیس کا مسئلہ بھی کہتے ہیں۔ تھیلیس کے بارے میں ہم
और मुख्तसर और मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। 43 इनकी विलादत क़ब्ल मसीहा 546 से 626 क़ब्ल मसीहा यूनान में हुई। 43 एक मशहूर यूनानी फ़लसफ़ी, रियाज़ीदान और साइंसदान थे। इल्म हिंदसा में मंतकी नताइज, जिसे हम लॉजिकल थिंकिंग, मंतकी नताइज के इस्तेमाल करने का तरीका इन्हीं के सर जाता है। उन्होंने इल्म हिंदसा में कई पेश हालतों को दरियाफ्त किया। 43 के मसलों को करने का तरीका कई रियाज़ीदान को मुतवज्जा किया और उन्होंने उसका इस्तेमाल मुख्तलिफ जगहों पर किया। उनकी मिसालें 43 ने उन्होंने किस तरीके से किए। 43 ने हैराम मिस्र के ऊंचाइयों को इनके सायों, शैडोज़, परछाई और मुतशाबा मुसल्लस के उसूलों की मदद से दरियाफ्त की। इस तरह मुतशाबा मुसल्लसों की मदद से बुलंदी और फासला नापना आसान हो। 43 585 585 क़ब्ल मसीहा में सूरज ग्रहण की पेशगोई भी की थी। अब हम इसके बाद मुतलासिबत का बुनियादी मसला, जैसे 43 का मसला भी कहते हैं, उसको समझेंगे और इसके इस्तेमाल। हम पहले मसला किस तरह से हल करेंगे उसको मुख्तलिफ चीज़ों से समझने की कोशिश करेंगे। मुतनासिबत का बुनियादी मसला, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम किसे कहते हैं? इसका स्टेटमेंट, मसला क्या है? अगर एक खत किसी मुसल्लस के ज़िले के मुतवाज़ी हो और बाकी दो अज़ला के मुतफ़रिक नुकात पर कता करे, तब वो खत इन अज़ला को तनासुब में तकसीम करता है। मसले में कभी दो चीज़ होती है, एक दिया हुआ होता और एक मालूम करना होता या साबित करना। अगर एक खत किसी मुसल्लस के एक ज़िले के, मतलब मुसल्लस है उसमें एक खत है मुतवाज़ी और वो खत मुतवाज़ी, और बाकी दो अज़ला को दो मुतफ़रिक नुकात पर कता करें, ये सब हमको यहाँ तक दिया हुआ है, तब यहाँ से हमें मालूम करना है वो खत इन अज़ला को तनासुब में तकसीम करता है। ये हमें साबित करना है। क्या दिया हुआ है, इसके ज़रिए हम एक शक्ल बनाएंगे मुसल्लस की। हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर RST, मुसल्लस RST दिया है, जिसमें एक खत जो मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी है दिया हुआ है। मुसल्लस RST में कता TS मुतवाज़ी है, ये मुतवाज़ी की निशानी है। पैरेलल है खत M, और खत M RS ज़िला को Y और ज़िला RT ज़िला Z पे कता करता है बिल तरतीब। साबित करना है RY बटे YS बराबर है RZ बटे ZT, यानी RY अपॉन YS इक्वल टू RZ अपॉन ZT, जो हमें इस मसले के आखिरी लाइन में समझना है। वो खत इन अज़ला को तनासुब में तकसीम करता है, तो ये तनासुब हो गया अपॉन RY अपॉन YS इक्वल टू RZ अपॉन ZT। अब हम इसको साबित करने के लिए कुछ सबूत पेश करेंगे। सबूत को करने के लिए हम कुछ अमल करेंगे। हम अमल करेंगे, दो खत कता खींचे, एक कता YT और एक कता SZ हमने बना लिया इन दोनों कता को। अब हम सबूत की तरफ बढ़ते हैं। अब इन सबूत में हम बेशतर तौर पर जानते हैं, हम 9th में 8 में देख चुके हैं सबूत। हम जब मुसल्लस में किसी दो मुसल्लसों को कंपेयर करते हैं, उनका मवाजना करते हैं और साबित करते हैं और हमारे नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और नतीजा अक्स करते हैं। यहाँ हमने दो मुसल्लस लिए, मुसल्लस ZYS
और मुसल्लस आर वाई जेड। इन दो मुसल्लस को हमने दो अलग कलरों से जाहिर किया है। हमने इसको अंदर की तरफ बताया, मतलब इस मुसल्लस का रकबा और इस मुसल्लस का रकबा। हम मुतनासिबत के बुनियादी मसलों को मुसल्लस के रकबों के ज़रिए साबित करेंगे, जो इससे पहले हमारी वीडियो में बताया जा चुका है कि मुसल्लस के रकबों को किस तरीके से ज़ाहिर करते हैं। उसकी 3 खुसूसियात हमने बताई है, उनको इस्तेमाल करेंगे इस मसले में। पहला, मुसल्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल आर वाई जेड अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल जेड वाई एस इज इक्वल टू आर वाई अपॉन वाई, मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस। जैसे हमने बताया कि हमने हमारी पिछली वीडियोज़ में उसे बताया है, ये दो मुसल्लस हैं, इन दोनों का एरिया रकबा ज़ाहिर करने के लिए हमने बताया। आप उसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। इसी तरह हम ये दो मुसल्लस के अलावा अब हम हमारे दूसरी तरफ बढ़ेंगे। अब हम दो अलग मुसल्लस को लेंगे, मुसल्लस जेड वाई टी और मुसल्लस आर वाई जेड। इनको भी दो मुख्तलिफ कलरों में ज़ाहिर किया है, आर वाई जेड ग्रीन और जेड वाई टी का रकबा रेड कलर से। यहाँ भी दोनों मुसल्लस को जो तनासुब है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर वाई जेड अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल जेड वाई टी इक्वल है आर जेड अपॉन जेड टी, मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस की बिना पर। अब हम हमारे तीसरे सबूत की तरफ बढ़ते हैं। अब हम दो मुख्तलिफ और मुसल्लस लिए, वाई जेड एस और मुसल्लस वाई जेड टी। ये दोनों मुसल्लस हमने लिए। इन दो मुसल्लसों में हम देखेंगे जो हमको दिया हुआ है, खत एम मुतवाज़ी है कता एच टी के, यानी दोनों के दरमियान का फासला यकसा है, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक। अगर हम यहाँ से उमूद खींचते हैं वाई से, अगर हम दोनों मुसल्लस के नुक्ता टी से कायदा वाई जेड पे एक इर्तिफा खींचे जो बाहर की तरफ बनेगी, इसकी ऊंचाई और नुक्ता एस से कायदा वाई जेड पे खींचे इसकी ऊंचाई, दोनों की ऊंचाई मरतफे की मसावी होगी और इनका कायदा मसावी वाई जेड। अब इनको हम दो मुख्तलिफ कलर के ज़रिए समझेंगे। रेड कलर वाई जेड टी का रकबा ज़ाहिर करता है और ब्लू कलर हमारी वाई जेड एस का। ये दोनों रकबा मसावी है और हम इसे हम मसावी इर्तिफा और कायदे वाले मुसल्लस की खुसूसियत के बिना पर साबित करें। इससे ये ज़ाहिर हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एस वाई जेड बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल टी वाई जेड। 1, 2 और 3 की बिना पर हमने क्या साबित किया, हमने जेड वाई एस और जेड वाई टी दोनों इक्वल है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल जेड वाई एस और जेड वाई टी का रकबा और जेड वाई एस का रकबा दोनों का बराबर है। हम फर्ज करते हैं जेड वाई एस और जेड वाई टी दोनों का रकबा 40 है और आर वाई जेड का रकबा 20 है, तो यहाँ भी 20/40, यहाँ भी 20/40, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा, तो हमें मालूम है उसका राइट हैंड साइड भी मसावी होगा, इक्वल होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 1 और 2, 3 की बिना पर आर वाई जेड इक्वल है जेड वाई टी और आर वाई जेड अपॉन जेड वाई एस। इसी तरह आर वाई अपॉन वाई एस इक्वल है आर जेड अपॉन जेड टी, जिसे हम साबित करना चाहते हैं। इससे हमने ये नतीजा हासिल किया कि
अगर एक खत किसी मुसल्लस के ज़िले के मुतवाज़ी हो और बाकी दो अज़ला को दो मुतफ़रिक़ नुकात पर क़ता करे तब वो खत इन अज़ला को तनासुब में तक़सीम करता है। शुक्रिया। हमारे मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से बने रहें और उसे लाइक या शेयर कीजिए। शुक्रिया।